ایجوکیشنل ریسورس پلانر ایگزیکیوشن کی اس ویڈیو میں ہم لیسن پلان ماڈیول کے سب ماڈیول مینج لیسن پلان کے بارے میں بات کریں گے۔ مینج لیسن پلان کے اندر جو بھی چیزیں ہم ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں اس کو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ایکیڈیمکس ماڈیول کے کلاس ٹائم ٹیبل اور ٹیچرز ٹائم ٹیبل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کام کو کرنے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے اپنے لیسن پلان کے مینج لیسن پلان والے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں ڈسکس کرنی ہے اس کی پری ریکوزٹ انفارمیشن ہماری ایکیڈیمکس ماڈیول کے کلاس ٹائم ٹیبل اور ٹیچرز ٹائم ٹیبل میں تفصیل سے ڈسکس کی گئی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو مکمل نہ دیکھی تو آپ کو اس لیسن پلان والے مینج لیسن پلان کی ویڈیو کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لہٰذا وہ پری ریکوزٹ ویڈیو ہے۔ اس کو یہیں پاز کر کے آپ پہلے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر واپس اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔ مینج لیسن پلان کے اندر ہمارے پاس آلریڈی ٹیچرز کو ان کے لیسنز یا ان کی کلاسز اسائن ہو چکی ہیں جو ہم نے ایکیڈیمکس والے پورشن میں کی تھی۔ فار ایگزامپل ہم اگر کسی ٹیچر کو سلیکٹ کر کے یہاں سے چیک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے منڈے اور ٹیوزڈے میں ان کے پاس 2 لیسنز موجود ہیں، جس میں سے ایک کا سبجیکٹ انگلش ہے، کلاس 1 بلو ہے اور اس کا ٹائم 8 AM سے 8:40 AM ہے اور وہ روم نمبر 1 میں ہے۔ اس کے بعد دوسری کلاس اردو کی ہے اور وہ کلاس 1 بلو سیکشن ہے، 8:45 پہ شروع ہو کے 9:25 تک ہوگا اور روم نمبر 2 ہے۔ جب ہم یہ والی ان کو کلاسز اسائن کر چکے ہوں گے، سبجیکٹ وائز ٹائم ٹیبل اسائن کر چکے ہوں گے ان کو، تو اگلا مرحلہ ٹیچرز کے اینڈ پر یہ آئے گا کہ انہوں نے اپنے اس سبجیکٹ کے اس پرٹیکولر لیسن کی لیسن پلاننگ کرنی ہوگی۔ اب لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے انگریڈینٹس اور پرٹیکولرز کیا ہوتے ہیں، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیچرز اور اسکول مینجمنٹ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو اس کے اوپر آپ ESP کنسلٹنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ سے ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنی کوئری کر سکتے ہیں۔ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ انگلش کے اس لیسن کے لیے ٹیچر نے لیسن پلاننگ کو ایڈ کرنا ہے، تو یہ جو سامنے لیفٹ اپر کارنر پہ پلس کا بٹن ہے، اس کو پریس کرنے سے آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا، ایڈ لیسن پلان۔ یہاں جو پرٹیکولر انفارمیشن چاہیے ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ آلریڈی ہم یہ چیزیں اپنے سسٹم میں انٹر کر چکے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو لیسنز یہاں نظر آ رہے ہیں، ہم نے انگلش کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے، ٹیچر کا نام ہے مریم۔ اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اس ایڈ لیسن پلان کے فارم میں کہاں سے پاپولیٹ ہو رہی ہیں اور یہ لیسن کہاں سے پاپولیٹ ہو رہا ہے، اور کسی لیسن کو سلیکٹ کرنے پر اس کا یہ سب ٹاپک مین ٹاپک جو ہے یہ کہاں سے پاپولیٹ ہو رہا ہے اور سب ٹاپک کیسے لکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہماری لیسن پلان کی پہلے سے بنی ہوئی ویڈیوز لیسن اور ٹاپک کو ملاحظہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ کنفرمیشن نہیں ملے گی کہ یہ ڈیٹا کہاں سے پاپولیٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے لیسن اور ٹاپک یہاں ڈیفائن کر دیے ہیں جو کہ یہاں پر آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں انگلش کے سبجیکٹ کے لیے۔ اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ نے وہ ساری ویڈیوز دیکھ لی ہوئی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ لیسن اور ٹاپک کہاں سے ایڈ کیا گیا ہے اور کون سے لیسنز اور ٹاپکس ایڈ ہو چکے ہیں۔ اب ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ پہلا لیسن جو ہے دی ہاؤس آف اللہ، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹاپکس جو ہم نے آلریڈی ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ یہاں پاپولیٹ ہو چکے ہیں۔ دی ہاؤس، وائی ورشپ اللہ، واٹ از اے مسجد اینڈ ویئر ڈو مسلمز گو ٹو آفر عمرہ۔ تو فار ایگزامپل ہم یہ پہلا ٹاپک سلیکٹ کر لیتے ہیں دی ہاؤس، اور پھر اس کے بعد اس کے سب ٹاپکس اگر کوئی ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل دی ہولی کعبہ، ٹھیک ہے۔
कौन सी डेट को ये लेसन एग्जीक्यूट होगा, वो डेफिनेटली वही वाली डेट होगी जो उसके लेसन प्लान में ऑलरेडी टीचर टाइम टेबल में लिखी हुई है. जो टाइम लिखा हुआ है वो सब चीज़ें ऑटो पॉपुलेट होंगी. ठीक है जी. आप देख सकते हैं कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे डाटा इनपुट करने की इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि हम ये टाइम टेबल पहले से सेलेक्ट करके आ चुके हैं. आज की तारीख 23 जून है, जबकि ये जो है 19 जून का सेलेक्ट हुआ है ऑलरेडी. ओके, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे अगर आपके पास कोई लेक्चर अपनी क्लास में दिखाने के लिए यूट्यूब पर मौजूद है, तो उसका जो एड्रेस है URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर को बोलते हैं, वो ये वाला एड्रेस होता है जो आपकी एड्रेस बार पर आ रहा होता है. वो लेसन प्लान में आप ये वाला एड्रेस URL के तौर पे यूट्यूब का जहाँ वो वीडियो पड़ी है उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी लेक्चर की कोई वीडियो, यानी जो आप अपने लेक्चर में दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ से वीडियो इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं जो बच्चों को दिखाना मकसूद है, तो आप डॉक्यूमेंट भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ लेगा कि इसको कहाँ से पिक करें. उसके बाद यहाँ पर टीचिंग मेथडोलॉजी, आप देखिएगा ये जो ऊपर वाली 3 जो आपको फील्ड्स नज़र आ रही हैं, इनके साथ स्टैटिक नहीं लगा हुआ. इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड या कंपलसरी या इम्पॉर्टेंट फील्ड्स नहीं हैं, ये ऑप्शनल हैं. आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, आप चाहें तो इनको पॉपुलेट कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है. लेकिन एज अ गुड टीचर ये एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है कि आपका होमवर्क मुकम्मल हो. अब जिस तरह टीचिंग मेथड के ऊपर भी स्टैटिक मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी लेसन प्लान टीचिंग मेथडोलॉजी के बगैर इनकम्प्लीट है. और कोई भी एकेडेमिया से रिलेटेड एजुकेशनिस्ट देखेगा तो वो आपके टीचिंग मेथडोलॉजी और आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स, इन दो की गैर मौजूदगी से इस बात का तयन करेगा कि आप एक लर्नेड टीचर नहीं हैं, या आपको नहीं मालूम कि लेसन प्लान कैसे बनता है और इसका क्या फ़ायदा होता है और ये चीज़ें हम क्यों लिखते हैं. तो ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं स्टूडेंट टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए. क्लास के अंदर जब टीचर अपनी पूरी वर्किंग दिखा रहा होता है, लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, ये चीज़ें उसके जहन में बहुत क्लियर होती हैं कि ये सब कुछ जो है उसका मकसद क्या है. तो अगर हम ये चीज़ें यहाँ पर इनकम्प्लीट छोड़ देंगे तो लामहला एक टीचर की हैसियत से हमारी जॉब इज़ नॉट कंप्लीट. खैर, हम यहाँ पर टीचिंग मेथडोलॉजी में फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं कि जो भी हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो डिस्कवरी मेथड से पढ़ाएंगे, और हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज़ शामिल होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ होली काबा. दूसरा होगा वेयर डज इट लोकेट. नंबर 3, वाई मुस्लिम्स consider Kaaba as a sacred place. कोई भी आप ऑब्जेक्टिव्स रखें, जो भी आप इस टॉपिक को सब टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए, स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट्स टू पॉन्डर, लर्निंग आउटकम्स बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद इस चीज़ को करने के लिए, इस पूरे टॉपिक को और सब टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए प्रीवियस नॉलेज क्या चाहिए है किसी भी स्टूडेंट को जो आपकी क्लास अटेंड कर रहा है, उसके पॉइंट वाइज चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं. प्रीवियस नॉलेज, उसको किस किस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो ये चीज़ें समझ लेगा. फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने बच्चों से पूछने हैं बिफोर द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर. वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस टीचर अपनी वर्किंग, अपने टॉपिक को देखकर, अपने टाइम को देखकर, क्लासरूम मैनेजमेंट के सारे फीचर्स को जहन में रखते हुए यहाँ डिलीवर करते हैं, यहाँ राइट डाउन करते हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते हैं अपनी क्लास में. उसके बाद अगले पोर्शन में हमने ये ऑप्शन ओपन छोड़ा हुआ है कि जहाँ पर आप अपने लिए प्रेजेंटेशन मटेरियल में कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं,
यहाँ पर लिख सकते हैं। वो किसी भी किस्म की डिटेल हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई प्रेरिक्विजिट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी भी तरह का सपोर्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, सपोर्ट मटेरियल हो सकता है, सपोर्ट फ्रेम हो सकता है, सपोर्टिंग इमेज हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप अपने इस टॉपिक या सब टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, वो यहाँ प्रेजेंटेशन के हेड में आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो इमेज भी सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका एक टॉपिक और उसका सब टॉपिक किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको यहाँ से सेव का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्लस का बटन है, जबकि यहाँ अब हमारे पास दो ऑप्शंस और ऐड हो चुके हैं, एक एडिट का और दूसरा व्यू का। आपने क्या लेसन प्लानिंग की है वो आप खुद भी एज अ टीचर और आपका हेड, चाहे वो सेक्शन हेड है या कैंपस हेड है, कोऑर्डिनेटर है, वाइस प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल है, वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो जस्ट इस पे व्यू पर क्लिक करेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ ऐड की होगी वो हमें यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब आप गौर कर सकते हैं कि जिस चीज़ को हमने ऐड किया था वो हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है, हमें व्यू हो रही है, और जो चीज़ें हमने ऐड नहीं की थी वो एम्प्टी हैं, खाली हैं। इसको एक्सेल में डाउनलोड किया जा सकता है अपने रिकॉर्ड के लिए, स्टूडेंट को, टीचर्स को, किसी और को शेयर करने के लिए, और इसको यहाँ से प्रिंट भी किया जा सकता है। ये लेसन प्लान एक सब्जेक्ट, किसी एक क्लास के एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक और सब टॉपिक के लिए यहाँ तक मुकम्मल हो चुका। जब आप ये कर लेंगे तो इसी तरीके से आपको फिर अपने दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरी क्लास के लेसन्स की लेसन प्लानिंग को मुकम्मल करना होगा, जिसका बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा जो हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। सारी वर्किंग जो स्कूल के अंदर टीचर करते हैं अपनी क्लास के लिए वो इस लेसन प्लान से गेज होती है। यहीं से टीचर्स की असेसमेंट होती है, यहीं से क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होती है। अगर आपके पास लेसन प्लान नहीं, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं, अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं, अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स नहीं, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन करने वाला आपकी क्लास या आपकी वर्किंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। और एट द एंड ऑफ द लेसन आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी के पर्सपेक्टिव में अपनी क्लास में क्या चीज़ सिखा के आए उसकी जस्टिफिकेशन का कोई मयार हमारे पास और मुकर्रर नहीं हो सकता। लिहाजा हमें अपने सब्जेक्ट्स के लिए क्लास वाइज उनके लेवल ऑफ लर्निंग, उनकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए लेसन प्लानिंग करनी होती है। और इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये स्टूडेंट लर्निंग का और क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट लर्निंग एनवायरनमेंट का। तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है। हमारी इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको लेसन प्लान को मैनेज करने के बारे में बताया जाए। अगर हम कोई भी बात इसमें कंप्लीट नहीं बता सके या कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके जहन में मौजूद है जिसको हम अभी तक एड्रेस नहीं कर सके, तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक में अपनी वो क्वेरी कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म के ज़रिए हमसे वो क्वेरी कर सकते हैं।